Hello all GATE CS aspirants. I'm Amit Goyal. I welcome you all to the YouTube channel of IS Master. In the Master Concept series for GATE Computer Science 2024, we are discussing the subject of theory of computation. We have already covered regular expressions in the previous session. In this session, we are going to cover how to convert regular expressions to finite automata and vice versa. So vice versa means that how to convert finite automata to regular expressions. So first of all, let us see what is our understanding of regular languages till now. Finite automata accepts regular languages, regular expressions represents regular languages, and then regular grammars generate regular languages. Alright. So now in this session, as I said, we have already covered. So in this session, we are going to cover regular expressions, the conversion to finite automata and finite automata to regular expressions. Although we have already covered finite automata in detail, we have covered NFA, epsilon NFA as well as DFA, right? And when I talk about regular grammars, we are going to cover them in the next session, all right? So let's see some more details on regular expressions. So first of all, we will see that how to convert regular expressions to finite automata. तो सबसे पहले हम बात करें तो primitive regular expressions हमारे पास तीन थे, that is phi, epsilon and the symbols. So, अब इसको हम कैसे करेंगे? हम क्या करते हैं, हम सभी तरीके के रेगुलर एक्सप्रेशंस जो हमने पढ़े उन सभी का हम एक बार देख लेते हैं फाइनाइट ऑटोमेटा कैसे बनेगा। जैसे कि प्रिमिटिव और एडवांस्ड वाले हम देख लेते हैं और जो कॉम्प्लेक्स वाले हैं उनका हम जनरल प्रोसेस डिस्कस कर लेते हैं एंड देन यू कैन कन्वर्ट एनी रेगुलर एक्सप्रेशन टू फाइनाइट ऑटोमेटा। ऑलराइट, सो लेट्स सी। सो व्हेन आई से phi, phi means it is not accepting anything, so this is the finite automata for phi. When I say epsilon, epsilon means only one string is there in the language, that is epsilon. So this is the one for epsilon. The initial state is the final state, therefore epsilon comes in this. Epsilon is accepted by this finite automata, right? When I say a, that means a is the only string in the language. So therefore this is also correct, that once you get an a, you reach the final state. All right, let's see some more. So these are basically the primitive regular expressions. So primitive regular expressions have been converted to finite automata in this slide, right? Now let's see what we have to do for the advanced ones. A plus B, that means either A or B. So this is A plus B. Either you get A or you get a B, you reach to the final state. आपको A मिले चाहे आपको B मिले, आप final state पे पहुंच जाएंगे। तो जैसे इसका मतलब क्या है, यहाँ पर दो edges हैं. This is a shorthand for these two edges. हमने पहले भी डिस्कस किया, यहाँ पर दो edges हैं, right? A dot B, पहले A आएगा और उसके बाद B and then we reach the final state. तो therefore A dot B. Then A star means 0 to 1 iterations of A. That is epsilon. Then single A, then double A, then triple A, then 4 A's and so on and so forth. तो अब आप देखिए 0A, that is epsilon. Since initial state is final state, initial state ही final state है इसलिए epsilon accept हो जाएगा. Single A आया तब भी accept हो रहा है, double A आया तब भी accept हो रहा है. तो this is the finite automata for A star. इसी तरह से हम बात करें कि ये वाला अगर हम यहां पर finite automata देख रहे हैं तो this is also accepting A star only. This is epsilon NFA. कैसे? अब देखिए, सब स्टार्ट इनिशियल स्टेट से स्टार्ट हुए, फाइनल स्टेट हमारी यहां पे है. अगर आप सिर्फ एप्सिलॉन ले लेंगे तब भी आप फाइनल स्टेट पे हैं, तो एप्सिलॉन इज देयर. देन यहां से गए आप एप्सिलॉन लिया, देन ए लिया, देन उसके बाद फिर से एप्सिलॉन. सो दैट मींस सिंगल ए इज आल्सो एक्सेप्टेड. देन आपके पास अगर आपको डबल ए जनरेट करना है तो कैसे करेंगे? एप्सिलॉन लिया, ए लिया, फिर से एप्सिलॉन लिया, फिर ए लिया एंड देन फिर आप एप्सिलॉन से यहां पहुंच गए. इसी तरह से आपको मल्टीपल एज चाहिए तो आप बार बार इस लूप को लगाते जाएंगे एंड देन यू कैन गेट एज मेनी एज नंबर ऑफ एज एज यू वांट. सो देयरफॉर ए स्टार के लिए अगर डीएफए बनाना है तो कुछ ऐसे बनेगा और एप्सिलॉन एनएफए बनाना है तो कुछ इस तरीके से बनेगा. ऑलराइट, नाउ ए बी स्टार. सो अभी इस तरह पिछली स्लाइड में हमने क्या देखा, ये जो है हमारे पास में जितने भी एक्सप्रेशंस जनरेट हो गए जो हमने एडवांस रेगुलर एक्सप्रेशन समझे वो जनरेट हो गए. अगेन मैं बार बार बोल रहा हूं कि ये ऐसा नहीं है कि लिटरेचर के टर्म्स है एडवांस रेगुलर एक्सप्रेशंस. मैं अपने स्टूडेंट्स को सेम फ्रीक्वेंसी पे लाने के लिए तीन टर्म्स यूज करता हूं. पहले हो गए हमारे प्रिमिटिव रेगुलर एक्सप्रेशंस, देन स्टेज 2 में हम एडवांस रेगुलर एक्सप्रेशंस बनाते हैं एंड देन फिर कॉम्प्लेक्स रेगुलर एक्सप्रेशंस यूजिंग एडवांस रेगुलर एक्सप्रेशंस एंड रेगुलर ऑपरेशंस. राइट, व्हाट आर रेगुलर ऑपरेशंस? कौन कौन से रेगुलर ऑपरेशंस हमने डिस्कस किए? प्लस है, डॉट है और स्टार है. प्लस क्या हो गया मेरा यूनियन, डॉट क्या हो गया कंकैटिनेशन, स्टार क्या हो गया क्लीन क्लोजर. ऑलराइट, ठीक है.
अब हम समझते हैं और एडवांस्ड कॉम्प्लेक्स रेगुलर एक्सप्रेशंस कैसे करेंगे। तो आप इन्हीं चीजों को बार बार करते रहेंगे, आपको सभी रेगुलर एक्सप्रेशंस को आप फाइनाइट ऑटोमेटा में कन्वर्ट कर पाएंगे। अगर हम कॉम्प्लेक्स के 2 एग्जांपल्स डिस्कस कर लेते हैं यहां पर, और उसके बाद फिर आप और ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो आपको एक कंप्लीट आइडिया लग जाएगा कि कैसे रेगुलर एक्सप्रेशंस को फाइनाइट ऑटोमेटा में कन्वर्ट करते हैं। तो देखते हैं इस एग्जाम्पल को। ए बी स्टार, दैट मीन्स ए डॉट बी, दैट मीन्स फर्स्ट ए बी हैज टू कम एंड देन so multiple iterations of AB are allowed, zero iteration is also allowed, right? So मैं क्या ऐसा लिख सकता हूं कि AB के ऊपर लूप है इनिशियल स्टेट पे। अगर हम यहां पर देखें एप्सिलॉन इज एक्सेप्टेड, राइट, देन 1 iteration of AB is allowed, 2 iterations, 3 iterations, 4 iterations and so on and so forth। इस तरह से हम फाइनाइट ऑटोमेटा बना सकते हैं। लेकिन क्या ये फाइनाइट ऑटोमेटा है? नहीं। क्यों? क्योंकि फाइनाइट ऑटोमेटा में एजेस के ऊपर हमें क्या चाहिए? सिंबल्स चाहिए। यहां पे तो सिंबल्स नहीं है, यहां पे तो मैंने स्ट्रिंग लिख दिया। तो आप इनिशियल आइडिया के लिए ऐसा बना सकते हैं, फिर आप सोचें कि इस ए बी को स्ट्रिंग से मैं सिंबल में कैसे कन्वर्ट करूं। तो आपको एक लूप चाहिए बेसिकली। तो आप ए बी को इस तरह से आप किस में कन्वर्ट कर सकते हैं? सिंबल्स में। आप ए लेकर एक दूसरी स्टेट पे चले जाइए, फिर बी लेकर के वापस आ जाइए। क्या ये इसी इफेक्ट को सिमुलेट कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है। आप ए लेके यहां गए एंड देन बी लेके वापस आ गए, तो एक तरीके से इस स्टेट के ऊपर ए बी का लूप है, राइट? तो इसी मेथड को क्या बोलते हैं? स्टेट क्रिएशन मेथड। तो आपने एक जनरल रफ आइडिया से बनाया और उसके बाद जहां जहां स्टेट को क्रिएट करने की जरूरत है वहां करते गए। आप स्ट्रिंग्स के साथ चलें और फिर उन स्ट्रिंग्स को तोड़ तोड़ के सिंबल्स बनाए। स्ट्रिंग से सिंबल पे जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? स्टेट्स डालनी पड़ेंगी। इसलिए इस मेथड को हम स्टेट क्रिएशन मेथड भी बोलते हैं। ऑलराइट, सो नेक्स्ट है हमारे पास थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन लेते हैं। ए बी प्लस बी ए का होल स्टार, दैट मींस आइदर एक ए बी का लूप है और एक बी ए का लूप है। आइदर ए बी और बी ए। होल स्टार मींस मल्टीपल आइटरेशंस आर अलाउड। ठीक है, सो यहां पर देखें आप, ए बी और बी ए का लूप है, एप्सिलॉन इज ऑल्सो अलाउड, सो इनिशियल स्टेट इज माई फाइनल स्टेट। जब मैं बोलता हूं ए बी प्लस बी ए का होल स्टार, इसका क्या मतलब है? 0 to इनफाइनाइट आइटरेशंस ऑफ व्हाटएवर इज रिटन इनसाइड, राइट? तो अब आप 0 आइटरेशंस, आप ए बी और बी ए का 0 आइटरेशंस लेंगे तो आपको एप्सिलॉन मिलेगा। 1 आइटरेशन लेंगे तो आपको ए बी भी मिल सकता है, आपको बी ए भी मिल सकता है। आप 2 आइटरेशंस लेंगे तो आप ए बी भी कर सकते हैं, बी ए भी कर सकते हैं। और उन 2 आइटरेशंस में से एक आइटरेशन ए बी का और दूसरा बी ए का भी ले सकते हैं। एक बी ए का पहले आ जाए फिर ए बी का आ जाए, पहले ए बी ए और दूसरा बी ए बी, ये भी हो सकता है, राइट? तो 0 to infinite iterations of the things which are written inside, that is basically our clean closure। ठीक है, तो इसको अगर हम ए बी और बी ए के लूप को, अगेन ए बी और बी ए क्या है? स्ट्रिंग्स है, इसलिए फाइनाइट ऑटोमेटा नहीं है। इसको हमें कन्वर्ट करना है फाइनाइट ऑटोमेटा में, तो मुझे लूप बनाना पड़ेगा। कैसे? एक एक्स्ट्रा स्टेट लेके अगेन स्टेट क्रिएशन मेथड लगाऊंगा मैं, ए बी एंड देन बी ए। तो इस तरीके से मैं रेगुलर एक्सप्रेशंस को फाइनाइट ऑटोमेटा में कन्वर्ट कर सकता हूं। आपको कितने भी कॉम्प्लेक्स रेगुलर एक्सप्रेशंस दे दे, आपको अगर बेसिक आइडिया है तो आप उससे कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल है। सो दिस इज व्हाट वी डिस्कस अबाउट हाउ टू कन्वर्ट अ रेगुलर एक्सप्रेशन टू फाइनाइट ऑटोमेटा, राइट? नाउ what is important is to discuss that how to convert finite automata to regular expressions. Let us see the motivation to do that first of all, right? So the motivation comes from the gate questions first of all, right? So although the basic motivation is to understand that how to convert finite automata to regular expressions, but one important motivation is to solve gate questions also, right? Okay, so let's see. So what we are saying, regular expressions, हमने क्या देखा गेट में कैसे क्वेश्चंस पूछता है कि किसी भी रेगुलर लैंग्वेज के लिए वो पूछेगा 4 ऑप्शंस देके कि भाई इसका कौन सा रेगुलर एक्सप्रेशन इस लैंग्वेज को रिप्रेजेंट करता है, राइट? तो एक तो हमने डिस्कस किया कि हम कॉमन सेंस से सॉल्व करेंगे। सिर्फ हमें एक ही कॉन्सेप्ट याद रखना है, रेगुलर लैंग्वेज का किसी भी लैंग्वेज का रिप्रेजेंटेशन कंडीशन क्या है? ऑल द स्ट्रिंग्स इन द लैंग्वेज शुड बी एक्सेप्टेड and all the strings not in the language should be rejected। इसका हम डायरेक्टली एप्लीकेशन लगाएंगे। अगर आपको रेगुलर एक्सप्रेशंस का बिल्कुल बेसिक सा भी आइडिया है और उसके बाद आपने सिर्फ और सिर्फ इस बेसिकली इस 2 पॉइंट्स को याद रख के एप्टीट्यूड बेस्ड क्वेश्चन की तरह इसे सॉल्व करना है। बाकी हमने कुछ आइडेंटिटीज भी डिस्कस किए जिसके थ्रू आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। ये दोनों पार्ट हम डिस्कस कर चुके। नाउ अगर एक लैंग्वेज काफी कॉम्प्लेक्स है और आप डायरेक्टली एक्सप्रेशन नहीं लिख पा रहे हैं, जैसे कि एग्जांपल में देखते हैं, राइट द रेगुलर एक्सप्रेशन फॉर द लैंग्वेज व्हिच एक्सेप्ट सेट ऑफ ऑल बाइनरी स्ट्रिंग्स such that the number of ones is divisible by 3।
आपको वो सारी बाइनरी स्ट्रिंग्स एक्सेप्ट करनी है जिसमें नंबर ऑफ वंस जो है वो 3 से डिवाइड हो जाए, राइट, सच दैट द नंबर ऑफ वंस इज डिविजिबल बाय 3। अगर आपको इस तरह से आपको बोला जाए आप इसका रेगुलर एक्सप्रेशन डायरेक्टली लिख दीजिए तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, डायरेक्टली लिखना थोड़ा मुश्किल है, आप कैसे सोचेंगे इसे, राइट। तो एक और आइडिया क्या है कि क्यों ना मैं इसका डीएफए बना लूं। डीएफए बनाना तो हमें आता है, इसका बहुत अच्छे से हमने डिस्कस किया है पिछले सेशंस में, डीएफए वाले सेशंस में। अगर मैंने इसका डीएफए बना दिया, उसके बाद में अगर डीएफए को अगर हम ये सीख लें कि फाइनाइट ऑटोमेटा को रेगुलर एक्सप्रेशंस में कैसे कन्वर्ट करना है, सो देन इट बिकम्स वेरी सिंपल फॉर मी टू राइट द रेगुलर एक्सप्रेशंस, राइट। तो यहां से एक मोटिवेशन आता है कि क्यों हम फाइनाइट ऑटोमेटा को रेगुलर एक्सप्रेशंस में कन्वर्ट करना सीखें, ठीक है। ऑल्दो फॉर द नॉलेज इट इज इंपॉर्टेंट, बट फॉर सॉल्विंग द गेट क्वेश्चंस इट इज मच मोर इंपॉर्टेंट, राइट। सो तो समझते हैं, वैसे अगर आप रेगुलर एक्सप्रेशन लिखना चाहें तो थोड़ा सा एक बेसिक आइडिया दे देता हूं। अगर आपको अभी से समझ में आता है बहुत अच्छी बात है, नहीं भी आता है डोंट वरी, वी विल सी द इजियर मेथड, राइट। तो मैं एक बार समझाने की कोशिश करता हूं, अगर आपको समझ में आता है वेल एंड गुड, नहीं आता है तो डोंट वरी, विल सी द बेटर एंड इजियर मेथड, राइट। अब आप देखिए हम बोल रहे हैं कि यहां पे नंबर ऑफ वन शुड बी डिविजिबल बाय 3। इसका क्या मतलब है कि 0 वंस अलाउड है, 3 वंस अलाउड है, 6 वंस अलाउड है, 9 वंस अलाउड है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। अगर मैं बात करूं इस एक्सप्रेशन की, मतलब 3 वंस का बेसिकली पैटर्न है, बेसिकली, राइट। 3 वंस का मतलब क्या हो गया, 1 0 स्टार 1 0 स्टार 1, राइट। 3 वंस है यहां पे, आगे पीछे भी जीरोस आ सकते हैं, तो मैं क्या करता हूं, यहां पे मैंने 0 लगाया और इसका होल स्टार कर दिया। अगर मुझे यहां पे जीरोस चाहिए तो मैं इससे प्रोड्यूस कर लूंगा, मुझे यहां पे जीरोस चाहिए तो मैं इससे प्रोड्यूस कर लूंगा, इसी से प्रोड्यूस कर लूंगा, इस जीरो से, ठीक है। तो इसमें सब आ गया। क्या इसमें एप्सिलॉन आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, या सिर्फ जीरोस हो, वंस हो ही ना, दैट इज ऑल्सो देयर। देन 3 वंस हो, दिस इज ऑल्सो देयर। देन 6 वंस हो, आप इसके 2 आइट्रेशंस ले, आपको 6 वंस में मिल जाएंगे। तो इस तरीके से आप डायरेक्टली भी लिख सकते हैं। बट अगर आपको लग रहा है थोड़ा मुश्किल है, नहीं हो पाएगा, एकदम से नहीं समझ में आ रहा है, विद प्रैक्टिस यू विल गेट टू डू ऑल दिस ऑल्सो, राइट। बट अगर थोड़ा सा भी इसमें डर लग रहा है तो हम एक इजियर मेथड डिस्कस करेंगे, दैट हाउ टू कन्वर्ट, विल फर्स्ट मेक द डीएफए फॉर इट एंड देन उसको डीएफए को हम कन्वर्ट कर देंगे रेगुलर एक्सप्रेशन में। आ रही बात समझ में? तो यहां पर ये रेगुलर एक्सप्रेशन विल जनरेट the binary strings which are in which the number of ones is divisible by 3, ठीक है। तो हम इस एग्जांपल पे वापस से आएंगे, हम पहले पूरा प्रोसेस समझेंगे और उसके बाद फिर इस एग्जांपल पे हम वापस से आते हैं और देखते हैं कैसे इसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट। And we'll see that whether we are getting the same expression or not. All right, let's see. So स्टेट एलिमिनेशन मेथड, तो इस मेथड को क्या बोलते हैं, स्टेट एलिमिनेशन मेथड। एक और मेथड भी है आर्डन्स लेमा, उससे भी कर सकते हैं, आर्डन्स मेथड इज आल्सो देयर, बट वी आर नॉट डिस्कसिंग आर्डन्स मेथड हियर बिकॉज व्हाई, स्टेट एलिमिनेशन मेथड पहली बात तो सिंपल है, आर्डन्स मेथड थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, आपको सिंपलर मेथड से करना है। गेट के एग्जाम में आपको कभी नहीं पूछेगा कि आप इसको आर्डन्स लेमा से सॉल्व करो, सॉल्व करने से मतलब है वो सिंपल मेथड से हम सॉल्व करेंगे। देन दूसरी बात, आर्डन्स लेमा एप्सिलॉन एनएफए पे नहीं लगता है, लेकिन स्टेट एलिमिनेशन मेथड डीएफए पे भी लगेगा, एनएफए भी बढ़ेगा और एप्सिलॉन एनएफए पे भी लग जाएगा। तो एक अगर मेथड जो है वो यूनिवर्सल है, तीनों तरह के फाइनाइट ऑटोमेटा पे लगता है, तो हम उस मेथड को पढ़ेंगे, ऊपर से वो सिंपल भी है। तो देयर इज नो पॉइंट इन स्टडिंग आर्डन्स मेथड, राइट। सो लेट्स स्टडी दिस मेथड। हमारे पास 4 स्टेप्स हैं इस मेथड में, हम स्टेप बाय स्टेप इसको समझते जाते हैं कैसे करना है। First of all, if there is an incoming edge to the initial state, then make a new initial state. Initial state पे पहली बात तो incoming edge नहीं होना चाहिए, अगर है तो क्या करना है, then make a new initial state and add an epsilon transition from the new initial state to the old one. आपको एक नया एप्सिलॉन ट्रांजिशन ऐड कर देना है ओल्ड इनिशियल स्टेट से न्यू इनिशियल स्टेट से ओल्ड के लिए। तो जैसे मान लीजिए यहां पर अगर इस एग्जांपल को डिस्कस करें, यहां पर एक मैंने फाइनाइट ऑटोमेटा दिया है, क्या है ये, डीएफए की एनएफए है, एनएफए है। क्यों? क्योंकि हर स्टेट पे हर सिंबल पे क्या होगा मैंने यहां पे नहीं बताया, राइट। तो अब यहां पे देखते हैं, तो मैं एक और इनिशियल स्टेट ऐड कर दूंगा यहां पे, राइट। सो व्हाट आई विल डू इज आई विल ऐड वन मोर initial state and I will connect it to the old one using an epsilon. All right, simple. So this is step number 1. Now the second point, if there is an outgoing edge from the final state से कोई outgoing edge नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर है तो क्या करेंगे, then make a new final state, आप एक और नई final state बनाएंगे and add an epsilon transition. कहां से कहां ऐड करना है, from the old final state to the new one.
ऑलराइट, द ओल्ड फाइनल स्टेट बिकम्स नॉन फाइनल। ऐसा नहीं कि दो दो फाइनल स्टेट्स रहेंगे, ओल्ड वाला जो है हट जाएगा, राइट। तो कैसे, यहां पर भी आप देखें फाइनल स्टेट से आउटगोइंग एज है पहले सो अगर हम पीछे जाए, इनका इनिशियल स्टेट पर इनकमिंग एज था, राइट, इसलिए हमने नया इनिशियल स्टेट बनाया। फाइनल स्टेट पे आउटगोइंग एज है, इसके लिए हमें एक और फाइनल स्टेट बनाना है। लेट मी नेम इट एज बी डैश, और इसको एप्सिलॉन मूव से जोड़ देना है। नाउ दिस इज नो मोर माय फाइनल स्टेट, राइट। सो आउटर सर्कल विल बी रिमूव्ड, दिस इज नो मोर अ फाइनल स्टेट नाउ, राइट, सिंपल है। नेक्स्ट स्टेप, इफ देयर आर मोर देन वन फाइनल स्टेट्स, अगर आपकी एक से ज्यादा फाइनल स्टेट्स हैं, तो पहले फाइनल स्टेट एक होनी चाहिए, अगर एक से ज्यादा है तो क्या करना है, देन मेक अ न्यू फाइनल स्टेट एंड, एक नई फाइनल स्टेट बनाएंगे। जैसे यहां पर आप देखें दो फाइनल स्टेट्स हैं, तो मैं एक नई फाइनल स्टेट बनाता हूं जिसका नाम मैं रख देता हूं CD, राइट, एंड देन ऐड एप्सिलॉन ट्रांजिशंस फ्रॉम द ओल्ड फाइनल स्टेट्स टू द न्यू वन। ओल्ड फाइनल स्टेट से नई फाइनल स्टेट के ऊपर हमें एप्सिलॉन ट्रांजिशंस बनाने हैं, तो यहां पे एक एप्सिलॉन ट्रांजिशन और यहां पर भी एक एप्सिलॉन ट्रांजिशन। द ओल्ड फाइनल स्टेट्स बिकम्स नॉन फाइनल, जो पुरानी फाइनल स्टेट्स थी वो नॉन फाइनल बन जाती हैं, मतलब ये भी डबल सर्कल हट जाएगा, ये भी डबल सर्कल हट जाएगा। Alright, so these are the three steps that we have discussed. अगर इनिशियल स्टेट पे इनकमिंग एज आ रहा है तो आप एक नई इनिशियल स्टेट बनाएंगे और उसे एप्सिलॉन मूव से कनेक्ट कर देंगे ओल्ड इनिशियल स्टेट के साथ। अगर फाइनल स्टेट पे आउटगोइंग एज है तो आप एक नई फाइनल स्टेट बनाएंगे, उसे कनेक्ट कर देंगे और पुरानी फाइनल स्टेट्स को नॉन फाइनल करके उन्हें कनेक्ट कर देंगे नई फाइनल स्टेट के साथ यूजिंग एन एप्सिलॉन मूव। अगर एक से ज्यादा फाइनल स्टेट्स हैं तब क्या करेंगे, आप एक नई फाइनल स्टेट बनाएंगे, पुराने वालों को सभी को नॉन फाइनल कर देंगे और उन सबको एप्सिलॉन मूव के थ्रू ज्वाइन कर देंगे टू द न्यू फाइनल स्टेट। ऑलराइट, सो दीज आर द थ्री स्टेप्स। नाउ द फोर्थ एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप, एलिमिनेट ऑल द स्टेट्स वन बाय वन एक्सेप्ट द इनिशियल एंड फाइनल स्टेट्स। आपको एक एक करके सारी स्टेट्स को डिलीट करते जाना है वन बाय वन। This that and because we are deleting the states, therefore it is known as state elimination method. ठीक है, तो कैसे करना है, जब डिलीशन करेंगे तो आपको इंश्योर करना है that after the elimination the transitions are modified accordingly such that the language remains the same. ठीक है, लैंग्वेज सेम रहनी चाहिए, ऐसे नहीं कि डिलीट कर दिया मैंने कुछ किया ही नहीं, तो आपको ट्रांजिशंस को उस तरह से मॉडिफाई करना है जिससे कि लैंग्वेज सेम रहे मेरी, so that the language remains the same. What remains between the initial and final states is your regular expression. तो आपने इनिशियल और फाइनल स्टेट को छोड़ के जितने भी स्टेट्स बीच में आ रहे थे एक एक करके सारे डिलीट कर दिए, उनके अफेक्ट को आपको इंटैक्ट रखना है। दैट इज यू हैव टू मॉडिफाई द ट्रांजिशंस अकॉर्डिंगली। ऐसा नहीं कि आप स्टेट को डिलीट कर देंगे और उसके अफेक्ट को जो है आप निग्लेक्ट कर देंगे। लैंग्वेज सेम रहनी चाहिए, ऐसा ना हो कि आप उसके अफेक्ट को ना कंसिडर करें, स्टेट के डिलीशन के अफेक्ट को आप ना कंसिडर करें। ऑलराइट, सो लेट्स सी this with the help of an example. हमने ऑलरेडी दो एग्जांपल्स देखे हैं, पहले इस मेथड को उस पे लगाते हैं एंड देन वी विल अप्लाई इट ऑन फर्दर एग्जांपल्स। ठीक है, सो लेट्स गो। अगर हम इस एग्जांपल को देखें तो अभी हमारे पास ये सिचुएशन है, क्या यहाँ पे इनिशियल स्टेट पे इनकमिंग एज है, नहीं है। फाइनल स्टेट पे आउटगोइंग एज है, नहीं है। क्या एक से ज्यादा फाइनल स्टेट्स हैं, हमने उसको सॉल्व कर दिया यूजिंग स्टेप नंबर 3। अब मुझे स्टेप नंबर 4 लगा के इसे कन्वर्ट करना है रेगुलर एक्सप्रेशन के अंदर। क्या करूं मैं, जो भी एक्स्ट्रा स्टेट्स हैं उन्हें मैं डिलीट करता जाऊंगा, राइट, इनिशियल और फाइनल के अलावा, राइट। सो लेट अस डिलीट दिस स्टेट फर्स्ट। अगर मैं स्टेट को डिलीट कर देता हूं तो ये ट्रांजिशंस नहीं रह सकते हैं बी और एप्सिलॉन, जब स्टेट ही नहीं है तो। अब इसके इफेक्ट को सिमुलेट कैसे करूं, बी से अगर मैं CD जाता हूं तो दिस इज बी डॉट एप्सिलॉन विच इज नथिंग बट बी, तो एक डायरेक्ट एज मैंने यहां ऐड कर दिया B एंड ऑल दिस इज डन। देन A से अगर मुझे CD पे जाना है तो A डॉट एप्सिलॉन दैट इज A, D को मैं डिलीट कर सकता हूं और डायरेक्टली मैं यहां पर A पे चला जाऊंगा, राइट। नाउ लास्ट स्टेप, वी हैव टू रिमूव दिस B ऑल्सो। अगर मैं इस B को डिलीट कर देता हूं तो क्या हो गया, A डॉट B से मैं CD पे पहुंच सकता हूं, A डॉट A से भी मैं CD पे पहुंच सकता हूं। इनिशियल स्टेट A है, फाइनल स्टेट CD है। सो मेरा रेगुलर एक्सप्रेशन क्या हो गया, AB डॉट AA, AB डॉट AB प्लस AA, सॉरी, दिस इज माई रेगुलर एक्सप्रेशन।
आप इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके ऐसे भी लिख सकते हैं a डॉट b प्लस, ऑलराइट। पहले a आएगा, उसको कंकैटिनेट में या तो b से कर सकता हूं या उसे a से कंकैटिनेट करके आई कैन रीच टू cd। दिस इज द होल मेथड। बहुत ही सिंपल मेथड है। आपको पता नहीं, मुझे नहीं पता है कि स्टूडेंट्स को क्यों इतना कॉम्प्लेक्स लगता है। आई थिंक मेरा अंडरस्टैंडिंग जो है स्टूडेंट्स को कॉम्प्लेक्स, इसको कॉम्प्लेक्स मानने का वो ये है कि स्टूडेंट स्टेप बाय स्टेप मेथोडोलॉजी को फॉलो नहीं करते हैं। देखने में लगता है ये मेथोडोलॉजी मतलब बहुत ही सिंपल सी है और उसको वो स्टूडेंट्स जो है टाइम पे याद नहीं रखते हैं, भूल जाते हैं, जिसकी वजह से मिस्टेक्स होते हैं। सिंपल सा स्ट्रेटेजी है, इनिशियल स्टेट्स के ऊपर इनकमिंग एज नहीं होना चाहिए, फाइनल स्टेट्स पे आउटगोइंग एज नहीं होना चाहिए और मोर देन वन फाइनल स्टेट्स नहीं होना चाहिए। अगर है तो हमें क्या करना है, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। एंड देन फाइनली वन बाय वन आपको स्टेट्स को एलिमिनेट करते जाना है और उनके अफेक्ट को कंसीडर करते हुए ट्रांजिशंस को चेंज करना है। एंड देन फाइनली व्हाट रिमेन्स बिटवीन द इनिशियल स्टेट एंड द फाइनल स्टेट इज बेसिकली योर रेगुलर एक्सप्रेशन। All right, so let's see the one more example that we have already discussed, this one. ठीक है, अब इसमें क्या है कि इनकमिंग स्टेट पे भी सॉरी द इनिशियल स्टेट पे भी इनकमिंग एज है, तो एक और इनिशियल स्टेट बनाना, जैसे मैंने पीछे बनाया था तो मैं बना देता हूं डायरेक्टली यहां पे a डैश। अब मुझे क्या करना है, a डैश और b डैश के बीच में जो रह जाएगा उसे मैं कहूंगा मेरा रेगुलर एक्सप्रेशन। तो जितने भी फालतू के नोड्स हैं उन्हें मैं डिलीट कर दूंगा, बीच में जितने भी हैं। तो देखिए यहां पे एप्सिलॉन मूव रहेगा ही। नाउ इनिशियल स्टेट पे इनकमिंग एज था, मैंने हैंडल कर दिया। फाइनल स्टेट पे आउटगोइंग एज था, मैंने हैंडल कर दिया। इनिशियल स्टेट पे इनकमिंग एज था, फाइनल स्टेट से आउटगोइंग एज था, इसलिए मैंने न्यू इनिशियल एंड न्यू फाइनल स्टेट्स बना दिए हैं। एक से ज्यादा फाइनल स्टेट है क्या? नहीं है। तो मैं स्टेप नंबर 4 लगाऊंगा। कैसे लगाऊंगा, यहां देखिए। अब अगर मान लीजिए मैं डिलीट करने लगता हूं, ऑलराइट, सो लेट मी डिलीट फर्स्ट ऑफ ऑल which state can be deleted. Let me delete a first of all. So अगर मैं a को डिलीट कर देता हूं तो क्या हो रहा है यहां पे, मान लीजिए मैं a को डिलीट करता हूं, ठीक है। सो a की वजह से अगर a हट जाता है तो मुझे कौन कौन से ट्रांजिशंस का ध्यान रखना है। पहले मैं a डैश से एप्सिलॉन मूव लेके मैं b पे जाता हूं। दिस इज एप्सिलॉन डॉट जीरो विच इज नथिंग बट जीरो। तो अब a डैश से डायरेक्टली b पे जीरो का एज है, एक तो वो कंसिडर करना पड़ेगा। दूसरा, इफ यू सी दिस 1-0 का एक लूप है यहां पे बी पे, जो कि ए हेल्प करता था। अब अगर वो चला गया है तो मुझे 1-0 का एक लूप लगा देना है बी पे। तो मेरा अगर इसको कंसिडर करूं तो मेरा नया ऑटोमेटा कैसा दिखेगा, ए डैश से मैं गया बी पे और बी से मैं गया बी डैश पे। बी डैश को तो डायरेक्टली मैं एप्सिलॉन के साथ रिप्रेजेंट कर सकता हूं, मतलब ट्रांजिशन लिख सकता हूं। और यहां पे एक 0 आ गया और यहां पे एक 1-0 का लूप है मेरे पास में। ऑलराइट, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, एक और जो एक्स्ट्रा स्टेट है उसको डिलीट करें, इनिशियल और फाइनल स्टेट रखना है बस, राइट। ठीक है, ये आया समझ में, राइट। कैसे है, जैसे मैंने इसको डिलीट किया तो इसके जितने भी इफेक्ट्स थे जो ये कर सकता था वो सारे रखने पड़ेंगे यूजिंग द हेल्प ऑफ ट्रांजिशंस। ठीक है, अब ये जो चीज बन गई इसको फाइनाइट ऑटोमेटा नहीं बोल सकते हैं। क्यों नहीं बोल सकते, क्योंकि यहां पे स्ट्रिंग्स हैं ट्रांजिशंस पे, जबकि फाइनाइट ऑटोमेटा में ट्रांजिशंस के ऊपर क्या रहता है, क्या रहता है, सिंबल्स रहते हैं। ऑलराइट, सो यहां पे हमारे पास स्ट्रिंग्स है। ऑलराइट, सो but this is a representation of the same thing. All right, so these are basically using extended transition function symbols. मतलब एक तरीके से यहाँ पे transitions पे symbols ना आके strings भी आ सकते हैं, right? All right, so अब यहाँ पर हमारे पास हमने इस effect को simulate कर दिया, 1-0 वाले effect को भी simulate कर दिया है। तो अब मैं अगर इसको लिखना चाहूं expression को, अब अगर मैं यहां से b भी eliminate कर दूं तो क्या बना, इसका effect देखें, 0 और फिर 1-0 का loop है, कितने भी बार 1-0 आ सकता है, देन आई गो टू बी। तो इसका मतलब क्या हो गया, ए डैश और बी डैश के बीच में 0.10 का लूप स्टार। दिस इज व्हाट योर रेगुलर एक्सप्रेशन इज। पहले 0 आएगा, उसके बाद 1-0 के कितने भी लूप्स लें और फिर आप बी डैश पे चले जाएं। 0.10 स्टार डॉट एप्सिलॉन इज नथिंग बट 0.10 स्टार। सो योर रेगुलर एक्सप्रेशन ओवर हियर इज 0.10 स्टार। All right, so these are the two simple examples on state elimination method. ठीक है, इसी तरीके से आप और better examples भी solve कर सकते हैं, आप और practice कर सकते हैं, you will get this idea will get fixed into your mind. ठीक है, हम कुछ और examples एक दो देख लेते हैं। Right, so write the regular expression
फॉर द फॉलोइंग ऑटोमेटा। अब इस ऑटोमेटा के लिए हमें रेगुलर एक्सप्रेशन लिखना है, तो सबसे पहले देखते हैं कि कैसे इसको देखें हम। इनिशियल स्टेट पे इनकमिंग एज है, नहीं है। फाइनल स्टेट पे आउटगोइंग एज है, नहीं है। क्या एक से ज्यादा फाइनल स्टेट से, नहीं है। स्टेप 1 2 3 नहीं लग सकते, तो मैं कौन सा स्टेप लगाऊंगा, स्टेप नंबर 4। क्या करूं, बी को निकाल देता हूं। अगर मैं बी को निकाल देता हूं यहां से, तो इसके इफेक्ट को सिमुलेट करना बहुत जरूरी है, तो मैं क्या कहूंगा, ए और यहां पर सी, ये फाइनल है। इसके बीच में ए डॉट बी स्टार का एक लूप है जो कि बी के जाने की वजह से हट गया है, ए डॉट बी स्टार डॉट सी। दिस इज माई रेगुलर एक्सप्रेशन, ए डॉट बी स्टार डॉट सी। सिंपल, ऑलराइट। एक और एग्जांपल देखते हैं। राइट द रेगुलर एक्सप्रेशन फॉर द फॉलोइंग फाइनाइट ऑटोमेटा। यहां पर हमारे पास फाइनाइट ऑटोमेटा एक और दिया गया है एंड हमें इसके लिए रेगुलर एक्सप्रेशन लिखना है। आइए लिखते हैं। तो देखते हैं, सबसे पहले इनिशियल स्टेट पे इनकमिंग एज है, बिल्कुल है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक और इनिशियल स्टेट बनाना पड़ेगा जिसका नाम रखूंगा मैं ए डैश, उसको एप्सिलॉन मूव से कनेक्ट कर दूंगा। दिस इज माय न्यू इनिशियल स्टेट। क्या फाइनल स्टेट पे आउटगोइंग एज है, बिल्कुल भी नहीं है। क्या एक से ज्यादा फाइनल स्टेट है, नहीं है। सो स्टेप 2 एंड 3 यहां वैलिड नहीं है, स्टेप 4 लगाएंगे डायरेक्टली। हम एक एक करके स्टेट्स को निकालते जाएंगे और हम रेगुलर एक्सप्रेशंस उनके इफेक्ट को लिखते चले जाएंगे। ऑलराइट, तो सबसे पहले हम ए को निकालेंगे। ए को अगर मैं निकाल देता हूं, आपने सिमिलर एग्जांपल देखा है, राइट? पिछले एग्जांपल से आप रिलेट कर पाएंगे, 1-0 वाला जो लूप था उससे रिलेट कर पाएंगे। लेट्स सी इट ओवर हियर आल्सो। नाउ ए की वजह से क्या हो गया, ये जो ट्रांजिशन था एप्सिलॉन डॉट बी, ये चला गया। एप्सिलॉन डॉट बी इज नथिंग बट बी। ए डैश से बी पे अगर मुझे जाना था, ए का यूज करके मैं जा सकता था, और साथ ही साथ में एक ए बी का लूप था यूजिंग ए ऑन बी, तो इसका इफेक्ट को मैंने यहां लिख दिया, ए बी। मैं इसी में मॉडिफिकेशंस कर रहा हूं, सिंस यू हैव ऑलरेडी अंडरस्टूड, आई एम नॉट रीड्रॉइंग इट। तो अब मैं इसको समझूं कैसे। अब ये वाला एज भी खत्म हो गया, क्योंकि ये एज इस पे आता है, ये स्टेट ही खत्म हो गई, ये एज भी खत्म हो गया। अब मेरे पास क्या बचा, बी से मैं यहां पे भी आ सकता हूं, और ए बी का एक लूप है, और उसके बाद सी का भी लूप है ऑन बी, एंड देन आई यूजिंग डी आई रीच टू सी। अब इसको आगे कैसे सॉल्व करें, हमें बी को डिलीट करना है। अगर मैं बी को भी डिलीट कर देता हूं, तब क्या रह जाएगा मेरे पास, यूजिंग बी। तो सबसे पहले क्या हो रहा है, अगर मैं बी को भी डिलीट कर देता हूं तो मेरे पास क्या बचेगा, ए डैश और फिर फाइनली सी। सबसे पहले यूजिंग बी, एप्सिलॉन डॉट बी, बी आई विल रीच टू दिस बी, एंड आफ्टर दैट मेरे पास सी और ए बी का लूप है। सो दिस बी हैज टू बी कॉन्कैटिनेटेड विद या तो सी या ए बी का मल्टीपल आइट्रेशंस, राइट? या तो सी या ए बी के मल्टीपल आइट्रेशंस। तो इसका मतलब क्या हुआ, बी डॉट सी प्लस ए बी का होल स्टार डॉट डी। इससे मैं डायरेक्टली सी पे पहुंच सकता हूं। तो मेरा रेगुलर एक्सप्रेशन क्या बनेगा, दिस वन। दिस इज माय रेगुलर एक्सप्रेशन, बी डॉट सी प्लस ए बी का होल स्टार डॉट डी। सिंपल है, बहुत बहुत सिंपल है। इट्स जस्ट दैट कि आप थोड़ा सा भी प्रैक्टिस करेंगे आपको आइडिया लग जाएगा। क्या किया मैंने, पहले ए को डिलीट किया, तो उसके इफेक्ट को सिमुलेट करने के लिए एप्सिलॉन डॉट बी, यानी कि बी से आप बी पे पहुंचेंगे, और फिर इस इफेक्ट को सिमुलेट करने के लिए ए बी का लूप लगाया। अब मुझे तीन चीजें दिख रही हैं, तीन स्टेट्स दिख रही है, ए डैश, बी और सी। अब उसके लिए मैंने बी को एलिमिनेट किया। बी को एलिमिनेट करने का मतलब है कि आप पहले बी लेके आप स्टेट पे पहुंचेंगे, उसके बाद सी और ए बी का क्या है, लूप्स हैं, बट पहले बी लेना पड़ेगा, कॉन्कैटिनेट करना है इन लूप्स के साथ में। या तो सी ले या ए बी ले, कोई भी ले सकते हैं आप, तो सी प्लस ए बी यूनियन, राइट? तो आइदर सी और ए बी, मल्टीपल आइट्रेशंस ऑफ दैट एट ए टाइम। एज आई सेड इन द प्रीवियस लेक्चर आल्सो, एट ए टाइम एक ही चीज लेंगे, ये नहीं कि सी और ए बी एक साथ ले लेंगे। एक बार सी ले लिया, उसके बाद ए बी ले सकते हैं नेक्स्ट आइट्रेशन में। एक बार ए बी ले लिया, नेक्स्ट आइट्रेशन में सी ले सकते हैं। ऐसा नहीं कि ए बी सी एक साथ ले लेंगे, ऐसा नहीं होगा, राइट? तो सी प्लस ए बी का होल स्टार डॉट डी, right? So this is very simple. Let's do one more example. Write the regular expression for the language which accepts set of all binary strings such that the number of ones is divisible by 3. मेरे को number of ones 3 से divide करने हैं। ये कौन सा example है, motivating example। motivating example जो हमने discuss किया, directly एक regular expression लिखना मुश्किल है, तो क्यों ना मैं इसका फाइनाइट ऑटोमेटा बना दूं। फाइनाइट ऑटोमेटा कैसा दिखेगा, number of ones has to be divisible by 3, that means 3 states रहेंगी, 0, 1 and 2. So this represents 0, remainder when divided, number of ones when divided by 3, this is representing remainder is 0, remainder is 1, remainder is 2। ठीक है, 0 के आने पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन अगर 1 आएगा तो रिमाइंडर यहां पे 1 हो जाएगा, एक्स्ट्रा 1 आएगा तो रिमाइंडर 2 हो जाएगा, और फिर से अगर 1 आया तो रिमाइंडर 3 हो जाएगा। एप्सिलॉन इज ऑलरेडी देयर इन द लैंग्वेज, दैट इज, लेट अस अज्यूम दिस इज गिवन इन द क्वेश्चन।
राइट? तो फाइनाइट ऑटोमेटा मेरा बनके तैयार है। अब मुझे इसको कन्वर्ट करना है किसके अंदर, रेगुलर एक्सप्रेशन के अंदर। कैसे करूंगा? इनिशियल स्टेट पे इनकमिंग एज है बिल्कुल, इनिशियल स्टेट पे इनकमिंग एज है बिल्कुल है, तो एक्स्ट्रा इनिशियल स्टेट बनाया ए डैश, इसको कनेक्ट कर दिया एप्सिलॉन के साथ में। फाइनल स्टेट पे आउटगोइंग एज है क्या? बिल्कुल है, तो मुझे एक और एक्स्ट्रा फाइनल स्टेट बनानी पड़ेगी। लेट मी से इट ए डबल डैश, उसको भी एप्सिलॉन मूव से कनेक्ट कर दिया। यहां पे भी एप्सिलॉन मूव, यहां पे भी एप्सिलॉन मूव। सिंपल है, ये मेरी फाइनल स्टेट बन गई। अब ये मेरी फाइनल स्टेट नहीं है। क्या एक से ज्यादा फाइनल स्टेट है क्या? बिल्कुल भी नहीं है, एक ही फाइनल स्टेट है। तो सीधा स्टेप नंबर 4 लगाएंगे। आइए देखते हैं। सबसे पहले स्टेट्स को एलिमिनेट करना शुरू करेंगे। सबसे पहले किसको एलिमिनेट कर देते हैं? हम सी को एलिमिनेट कर देते हैं। अगर मैं सी को एलिमिनेट करूं तो सिंपल सा क्या होगा, सिंपल क्या होगा, सी को एलिमिनेट करा जाए या पहले हम किसको करें? लेट मी सी। ऑलराइट, सो सी को भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। लेट्स से एलिमिनेट सी फर्स्ट ऑफ ऑल। सो यहां पे क्या इफेक्ट आ रहा है इसकी वजह से? ये एज चला जाएगा, ये एज चला जाएगा। इसका मतलब है सीधा 1 0 स्टार 1 का मैं लूप लगा दूंगा बी से ए, एज लगा दूंगा बी से ए। राइट? मैंने क्या किया? सी को डिलीट कर दिया, 1 0 स्टार 1, राइट? बी से ए की तरफ 1 0 स्टार 1। अगर मान लीजिए मैं बी को भी डिलीट कर देता हूं तो ये एज क्या बन जाएगा? ये एज भी चला जाएगा, ये एज भी चला जाएगा। तो सीधा मुझे क्या दिखेगा? ए के ऊपर मैं एक एज लगा सकता हूं जिसपे मैं क्या लिखूं? 1 0 स्टार 1 डॉट 0 स्टार, उसके बाद डॉट 1 0 स्टार 1 1 0 स्टार 1। मतलब ये सारा मैं निकाल सकता हूं। ऑल दिस इज रिलेटेड। सो अभी क्या रह गया? एक 0 का लूप है, एक 1 0 स्टार 1 डॉट 0 स्टार डॉट 1 का लूप है ए के ऊपर। दैट्स इट, एवरीथिंग इज डिलीटेड। पहले हमने सी को डिलीट किया जिससे पता लगा 1 0 स्टार 1 ए पे जा रहा है। फिर हमने बी को डिलीट कर दिया जिससे हमें क्या पता लगा? 1 0 स्टार 1 का लूप जा रहा है, 1 0 स्टार बी पे है। राइट? फिर उसके बाद कॉन्कैटिनेट करना है उसे 1 0 स्टार 1 के साथ, तो वी गॉट दिस। तो एक लूप बन रहा है 1 0 स्टार 1 0 स्टार 1 जो कि ए के ऊपर है, बी और सी डिलीट होने के बाद। अब ए के ऊपर दो लूप्स हैं, एक 0 का एक इसका, उसके थ्रू आप ए डैश पे जा सकते हैं। अगर आप ए डैश से ए डबल डैश पे जा सकते हैं, ए डैश से ए डबल डैश पे अगर आपको जाना है तो कैसे जाएंगे? यू कैन यूज मल्टीपल आइट्रेशंस ऑफ 0 एंड 1 0 स्टार डॉट 1 डॉट 0 स्टार डॉट 1। तो इसको कैसे लिखेंगे? आप ए डैश से ए डबल डैश पर यूजिंग 0 प्लस 1 डॉट 0 स्टार डॉट 1 डॉट 0 स्टार डॉट 1 का होल स्टार, ये आपका बन जाता है। और ए डबल डैश हमारी फाइनल स्टेट है। तो दिस इज द रेगुलर एक्सप्रेशन, और हमने यही रेगुलर एक्सप्रेशन क्लास के स्टार्टिंग में लिखा था, 0 प्लस 1 0 स्टार डॉट 1 डॉट 0 स्टार डॉट 1 का होल स्टार। राइट? सो दिस इज हाउ यू राइट रेगुलर एक्सप्रेशंस। सिर्फ 4 स्टेप्स याद रखने हैं। इनिशियल स्टेट पे इनकमिंग एज नहीं होना चाहिए, फाइनल स्टेट पे आउटगोइंग एज नहीं होना चाहिए, एक से ज्यादा फाइनल स्टेट्स नहीं होने चाहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप, लास्ट स्टेप, आपको एक एक करके स्टेट्स को एलिमिनेट करना है। जो इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट के बीच में रह जाएगा वो आपका रेगुलर एक्सप्रेशन रहेगा। एज सिंपल एज दैट। राइट? तो ये आपको मेथड कब काम आएगा? आप डायरेक्टली रेगुलर एक्सप्रेशन नहीं लिख पा रहे हैं तो आप फाइनाइट ऑटोमेटा बनाए, डीएफए बनाए, एनएफए बनाए, एप्सिलॉन एनएफए, जो आपको इजी पड़ रहा है। मेरे हिसाब से सबसे इजी डीएफए रहता है, आप डीएफए बनाए। एनएफए भी बना सकते हैं, बनाने में इजी है। राइट? सो अगर डीएफए बनाना इजी लग रहा है आप डीएफए बनाए, एनएफए भी बना सकते हैं, बिकॉज बहुत सारे केसेस में एनएफए बनाना इजी है, और वही तो मोटिवेशन था हमें एनएफए बनाने का। एप्सिलॉन एनएफए डायरेक्टली इंट्यूटिव नहीं रहता है। राइट? तो एनएफए बनाए या डीएफए बनाए, जो आपको इजी लगे। राइट? तो ऑलराइट, एंड देन आफ्टर दैट यू कैन राइट द रेगुलर एक्सप्रेशन। ठीक है? सो दैट्स ऑल अबाउट दिस सेशन गाइस। वी हैव discuss in detail regular expressions and how to convert them to finite automata, and as well as vice versa. Right? So these are the sessions which we have already covered. So 9th session we have already covered. Right? So this is the 10th session. We have already taken a practice session also. Right? So on finite automata. Right? So in the next session we'll study about grammars, and we will see what are their types and how do we interpret the languages that they are generating. Right? So we'll see that in the next session, and these are the details of the next few sessions. All right. So thank you so much guys. I'll see you in the next session with some details on grammars.